Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad More English High School. Okay, yesterday I started practice set 16.2 and completed first question. Okay, first question के three parts complete किए थे. Now remaining questions, question number 4 and 5. Okay, now look here, fourth question. Radius is given as 70 centimeter, height is given as 1.4 centimeter. Okay, now what you are supposed to find? Curved surface area and total surface area. Okay, now let's solve the fourth one and then fifth will be our homework. Radius 70, height 1.4. So write down first. Radius is equals to 70 centimeter, height is equals to 1.4 centimeter. Now first curved surface area, right? We will find curved surface area of cylinder. Surface area of cylinder. So formula for that is 2 pi r h. Correct? Now 2 into pi, that is 22 upon 7. R की वैल्यू गिवन है आपको 70, height is 1.4. Okay, now let's multiply. You can see here 7 can be cancelled, right? 7 ones are 7, 7 ones are 7, 0 as it is. So now we got it here as 222, 10, 1.4. So now we will multiply these values. 2 into 22, 44. 10 into 1.4, 14, right? So now you will multiply 44 and 14 and you will get the final answer. 4 fours are 16. 6, 1 carry. 4 fours are 16 plus 1, 17. 4 ones are 4, 4 ones are 4. Add it. Okay. 6 plus 0, 6. 7 plus 4, 11. 1 carry. 4 plus 1, 5 plus 6. 616. So you got the area. Sir ने message डाले sir को. Now listen. 616 square centimeter. This is the curved surface area, correct? Now let's find the total surface area. Write down the formula for total surface area. Total surface area is equals to 2 pi r h plus r. Okay, now we will substitute the values. 2 into pi, value of pi is 22 upon 7, r is 70, h is 1.4 and then plus r, that is 70. Okay. Now 2 into 22 upon 7 into 70 into 70 plus 1.4, 71.4. Now cancel it. 7 1 7, 0 as it is. Correct? So 2 multiplied by 22 multiplied by 10 into 71.4. Correct? Now you can multiply these terms. 2 into 22 will give you 44 and 71.4 multiplied by 10 will give you 714. Right? Means जो 10 से 10 से मल्टीप्लाई करने पे जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. So it will become 714. Correct? So now 44 into 714 will give you final answer. We will multiply them. 714 and 44. 4 fours are 16, 6, 1 carry, 4 ones are 4 plus 1, 5. 7 fours are 28. 4 fours are 16, 6, 1 carry, 4 ones are 4 plus 1, 5.
7 fours are 28. Add them. 6 plus 0, 6. 5 plus 6, 11. 1 you will write, 1 carry. 8, 5, 13 plus 1, 14. 1 carry. 8 to 10, 11. 1 carry. 2 plus 1, 3. Correct? So now you got the final answer as 31,416. So total surface area. Therefore, total surface area 31416 square centimeter. Okay. Next question. सैंपल कॉपी दिया है क्वेश्चन पेपर में, इसके साथ ही ये ऐसे ही था ना, छोटा छोटा साइंस का दिया था उनको आज मैंने पांच क्वेश्चन पेपर का सेट था, सेपरेट सेपरेट साइंस का, हिंदी का, मराठी का। यही है शायद. Okay, now listen. Question number 2. Find the total surface area of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 and height is 45. आपको diameter और height given है. Okay. आपको find क्या करना है? Total surface area. Now look here. One important point. अब आप pi की value हमेशा क्या लेते हो? 22/7. But here it is given you have to take the decimal value, that is 3.14. Okay. To solve this question. So now we will use the formula and solve it. Okay. So first we'll write what is given. Diameter is given as 50 and height is given as 45 centimeter, right? Now अब देखो ये closed cylindrical drum है, cylindrical drum ऐसा, ठीक है. इसका आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसमें आपको h गिवन है और ये कंप्लीट डायमीटर गिवन है. लिसन, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेडियस की, राइट? जो क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. सो आप क्या करोगे? सबसे पहले डायमीटर के हेल्प से रेडियस फाइंड करोगे और फिर इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे. सो नाउ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मींस 50/2. करेक्ट? So 2 2s are 4, 1 carry forward, 2 5s are 10. So therefore radius is equals to 25 centimeter. Now we will write down the formula for total surface area. Okay. Total surface area is equals to 2 pi r h plus r. Now we will substitute the values. 2 pi की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 3.14 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, so we will use that only. R radius is 25 into h plus r height is 45 and r is 25. Now we will multiply 2 into 3.14 into 25 into 45 plus 25 50 60 70, right? अब हम ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. सो पहले मल्टीप्लाई करना है 2 into 3.14. ओके. So now let's multiply 3.14 into 2. 4 2 are 8, 2 1 are 3 2 are 6, 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है 6.28. करेक्ट? नेक्स्ट 25 into 70 मीन्स आपको 25 को 70 से मल्टीप्लाई करना है. 0 5 7 35, 5 3 कैरी, 7 2 14 प्लस 3 17. ऐड करो 1750. You will get 1750, right? Now what you will do, you will multiply 6.28 by 1750. आप क्या करोगे? 1750 को 6.28 से मल्टीप्लाई करोगे. So now let's multiply 1750 6.28. Okay.
So first 8 zeros are 0. 8 fives are 40. 0 you will write for carry. Correct? 8 sevens are 56 plus 4. 60. 0. 6 carry. 8 ones are 8 plus 6. 40. Then put a 0. 2 zeros are 0. 5 twos are 10. 0. 1 carry. 7 twos are 14 plus 1. 15. 5. 1 carry. 2 ones are 2 plus 3. Then put 2 zeros. 6 zeros are 0. 5 6 are 30. 0 3 carry. 5 6 are 30. So you will write 0 and 3 carry, right? Now 7 6 are 42 plus 3 45. 45 5 you will 4 carry. 6 ones are 6 plus 4 10. Now add them. Here you will write get 0. Again you will get 0. यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा. Correct? 4 plus 5 9. 5 3 8 1 9. 0 1, and that is a decimal after 2 digits, so you will put a decimal after 2 digits. So you got the final answer is 10,990. Correct? Means total surface area is 10,990 square centimeter. Means decimal के बाद जो zeros है वो क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड कर दोगे आप उसको सिंपली. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट. Question number 3. Find the area of base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter. Now concentrate here. अब आपको क्या गिवन है, देखो आपको एरिया ऑफ बेस, देखो आपने सिलेंडर देखे और लुक हियर में बेस, ओके. नाउ लुक, आपको बेस का एरिया फाइंड करना है. ओके, एंड रेडियस फाइंड करना है. ओके, अब देखो यहाँ पे सिलेंडर है, सपोज इट इज राइट. तो इसका जो बेस होता है यू कैन सी दैट इज ऑफ सर्कुलर शेप. ओके, बेस जो होता है, टॉप और बेस दोनों भी क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है. ओके, सर्कल शेप का होता है. तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए. करेक्ट है, राइट. सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. सो यही फॉर्मूला यूज करके आपको एरिया ऑफ बेस मिलेगा. बट उसके साथ में आपको और क्या फाइंड करना है, लोग रेडियस भी फाइंड करना है. रेडियस एंड, और उसके लिए आपको हिंट क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर इज गिवन एंड हाइट इज गिवन. ओके, मीन्स आपको जो कर्व सरफेस एरिया गिवन है और हाइट गिवन है वो यूज करोगे, आप रेडियस फाइंड करोगे. ओके, आफ्टर you will get radius you can easily find the area of base of that cylinder. ठीक है, so now let's solve the third question. So now look, आपको given a curved surface area, so we will write down here curved surface area is equals to 660 square centimeter. After that height is also given 21 centimeter. Okay,
फाइंड क्या करना है आपको, वी विल राइट डाउन हियर रेडियस, रेडियस फाइंड करना है ना, एंड एरिया ऑफ बेस, ये दोनों फाइंड करना है। अब देखो जो सबसे पहले गिवन है हम लोग उसको यूज करेंगे। क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया। So now tell me the formula for curved surface area. What is that? 2 pi r h. Okay. अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया मीन्स आपको लेफ्ट साइड का पोर्शन जो हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, that is 660. So we will write here 660 that is equals to 2 into pi, pi की वैल्यू क्या है 22/7 into r फाइंड करना है ना, तो कीप इट एज इट इज। ओके, h गिवन है 21, वो यूज करेंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। 7 1 is 7, 7 3 is 21, 2 into 22 44, right, into r into 3 is equals to 660। अब फाइंड क्या करना है, देखो आपको रेडियस, तो बाकी की वैल्यूज को क्या कर दोगे आप, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। सो व्हेन दे आर प्रेजेंट हियर इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो आप यहाँ पे जब शिफ्ट करोगे सो इट विल बिकम डिवीजन, 44 into 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। 660 upon 44 into 3. Okay, now look, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 0. 22, 220 upon 44, 220 upon 44. 11 2s are 22, 0, 11 4s are 44, right? Now 4 और 20 को डिवाइड करना है आपको। So 4 1s are 4, 4 5s are 20, correct? So radius क्या मिला आपको, therefore radius r is equals to 5 centimeter। आपको radius की वैल्यू मिल गई। Now you are supposed to find the area of base and base is always circular shape। सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, so we will use the formula for area of circle, right? So now area of base is nothing but pi r square, right? That is the formula only। Pi is 22/7 into r square, r is 5 means 5 square, 22/7 into pi का स्क्वायर क्या रहेगा 25, correct? Now 22 into 25/7 will give you the final answer। 22 into 25, 5 2s are 10, 0 1 carry, 5 2s are 10, 11, 2 2s are 4, 2 2s are 4, add them, 5 5 0 means you will get here 550, so 550/7। नाउ 7 के टेबल में 55 तो नहीं आएगा बट इससे लेसर नंबर आता है, राइट? 7 1 is 7, 7 7 is 49, 50 55 6 कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट? नाउ 7 8 is 56, 4 रिमेनिंग रहेगा। नाउ पुट अ डेसिमल, इंक्रीज 0, 7 5 is 35, 5 रिमेनिंग, 0 कैरी फॉरवर्ड करोगे, 7 7 is 49। सो अप टू 100 से आपको क्या करेंगे, आगे वैल्यूज मिलती जाएगी, तो 78.57 समवॉट आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter। ओके, अब देखो आपको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए 28 और हाइट 20। Find the approximate area of sheet required to make a lead of the height
2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले वो जो शीट रिक्वायर्ड है, जो क्या है सिलेंड्रिकल कंटेनर को बनाने के लिए शीट रिक्वायर्ड है, उसका एरिया फाइंड करोगे आप, ठीक है। और वो कंटेनर कैसा होना चाहिए, शुड बी ओपन एट वन साइड, शुड बी ओपन एट वन साइड मीन्स इसमें आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हो ना, तो आपको वो नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और नीचे का बेस फाइंड करना है। समझ में आया? वन साइड क्या रहेगी, ओपन रहेगी, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो वन साइड से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट जो क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, तो स्टार्टिंग का पार्ट का आंसर कैसे मिलेगा आपको, आपको ये जो शीट रिक्वायर्ड है उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस, ये दोनों ऐड करोगे तो आपको शीट जो रिक्वायर्ड है कंटेनर बनाने के लिए वो मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टू मेक अ लीड। अब इस जो ऊपर ये जो ओपन साइड है ना, लीड मतलब ऊपर जो ढक्कन लगाएंगे है ना, तो वो बनाने के लिए ओपन साइड है ना, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, मेटल शीट कितनी लगेगी वो फाइंड करना है अलग से, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अब देखो इस कंटेनर पे लगने वाला है ना वो लीड, ऑब्वियसली उसका फिर डायमीटर और जो भी रेडियस होगा सेम ही होगा, बस हाइट क्या है डिफरेंट है, 2 सेंटीमीटर मीन्स यही रेडियस यूज करेंगे और हाइट ही वाली यूज करेंगे, और फिर वो लीड का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले कंटेनर का एरिया फाइंड करेंगे जो वन साइड ओपन रहेगा, उसके बाद लीड का एरिया फाइंड करेंगे, ओके। सुनो